الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم: أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها نطفة وصدق رسوله النبي الكريم. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے اصحاب پیغمبر سے محبت کی ہے. اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا. بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو کچھ اللہ کے دھر دیا. اس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا. ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین محفل، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، بالخصوص میرے پیر و مرشد جن سے میرا سلسلہ بیعت ہے، محبوب العلماء، مخدوم العلماء، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، میرے انتہائی مشرق، مربی، محسن استاد مکرم، جن سے میں نے بہت عرصہ پہلے دارالعلوم کبیر والا میں صرف پڑھی تھی. میری مراد محتمم ادارہ جامع المعقول والمنقول استاد العلماء، محبوب العلماء حضرت مولانا محمد نواز نقشبندی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ اور ان کے جمع سال صاحبزادے جو ماشاءاللہ بڑی دل جمی اور بڑی انتھک محنت کے ساتھ اس جامعہ کو چار چاند لگا رہے ہیں. فاضل اجل حضرت مولانا محمد زکریا صاحب اور دیگر سٹیج پہ موجود علماء کرام. وقت انتہائی مختصر ہے اور گزشتہ کل چونکہ میرے اپنے ادارے کا ختم بخاری کا ایک بہت بڑا پروگرام تھا، اس کی وجہ سے کافی طبیعت پہ بھی تھکاوٹ اور کچھ بخار کا ایک سردی کی وجہ سے، مگر میں کم از کم اس پروگرام کو مس نہیں کر سکتا تھا کہ یہ میرے استاد محترم کا حکم تھا جس کو ہر صورت بجا لانا مجھ پہ ضروری تھا. مجھ سے پہلے میرے ساتھی، میرے کلاس فیلو، میرے ہم مکتب، ہم مدرسہ،
हमने तकरीबन 4 साल गालिबन शरह जामी से लेकर दौर हदीस तक इकट्ठे पढ़ा था। हजरत मौलाना जुबैर सिद्दीकी साहब वो आपसे मुखातब थे और हमने 87 में 1987 में गालिबन दौर हदीस भी जामिया अहमदिया फैसलाबाद में इकट्ठे किया था। वो आपके सामने बड़ी इल्मी गुफ्तगू फरमा रहे थे और मैं कुछ सिफली सी गुफ्तगू अर्ज करूंगा, मगर आपको मेरे मिजाज का पता है। मैं इधर भी देखूंगा कि सारे मेरे असातिज़ा बैठे हैं, इनको तो मैं सबक सुनाना चाहता हूँ ताकि वो कोई गलती निकालें, इस्लाह करें। मगर जो मेरे सामने बैठे हैं, आपको तकरीबन मेरी मुलाकातें होती रहती हैं, तो मेरे ज़ौक़ से आप वाकिफ़ हैं। मैं कहा करता हूँ कि अगर मैं बचपन में बचपन दिखाता हूँ तो फिर आपको भी एक जज्बा दिखाना चाहिए। ये दरमियान में सरा मैं देखूंगा, अभी मुझे इनको हिलाने झुलाने दो, ये बेचारे थके बैठे हैं ना, थोड़ा सा सूफियाना गुफ्तगू है सुन के, तो वो खानकाही मिजाज बना के बैठे हैं, तो हम थोड़ा सा मिक्सअप करेंगे। मेरे मिजाज का आपको पता है कि मैं कहा करता हूँ बाज़ौक़ आदमी हूँ, बाज़ौक़ मजमा चाहता हूँ, जिंदा दिल आदमी हूँ, जिंदा दिल मजमा चाहता हूँ, हंसता मुस्कुराता आदमी हूँ, हंसता मुस्कुराता चेहरा चाहता हूँ। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि मैंने तकरीबन 38 साल होने को है मुझे इस किताबत के समंदर में तैरते हुए, और मैं कहा करता हूँ कि मेरी तकरीर में कोई लतीफ़ा, कोई चुटकुला, बैठा तो यार इस टेक्निक को, कोई लतीफ़ा, कोई चुटकुला, कोई हंसाने रुलाने घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें नहीं होती। मैं एक अलग अपनी धुन का खतीब हूँ, अपने ज़ौक़ अब्बासी के समंदर की लहरों में तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। करता उस वक्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कोई जज्बा छलक रहा हो। हाँ, पूरी अगर आपकी तवज्जो रही और इन सटकियों को आपने बिठा दिया तो मैं चाहूंगा कि आधे घंटे में भी मैं 2 घंटे वाली गुफ्तगू कर जाऊं। मेरी मजबूरी है, मैं दिल से बोलता हूँ, दिल में उतारता हूँ। अगर आप भी जग के तो मुझे बोलने का फिर मजा नहीं आता, क्योंकि मैं गुफ्तगू अपनी गहराई तक तब ले जा सकूंगा जब आप मेरे साथ होतज़न होंगे। तो आज मैं जो उन्वान अपने उस्ताद मोहतरम और अपने मखदूम मोहतरम की दुआएं लेने के लिए आपकी नजर करने चला हूँ, मैं कहा करता हूँ कि ये उन्वान मेरी 38 साला खिताबत के दौर का निचोड़, मेरी पूरी जिंदगी का सरमाया, कि मैंने ये उन्वान पहली मरतबा 2004 में मैं साउथ अफ्रीका के दौरे पे था। वहाँ बड़े बड़े कुछ मदारिस, दारुल मजाकिल, दारुल डरबन, दारुल स्टीगोबी, दारुल जकरिया, दारुल न्यूकासिल, वहाँ मुझे उन्होंने बुलाया रद्द राफजियत पे मुनाजरा पढ़ाने के लिए। तो मैंने उस 2004 में पहली मरतबा ये बयान जो आज आपको मैं खिलाफत राशिदा का उन्वान देने चला हूँ वो मैंने बयान किया, तो अल्लाह ने मुझे नगद इनाम के तौर पर उसी रात अपने हबीब और चारों सहाबा की ज़ियारत की। इसलिए मेरा बहुत अहम उन्वान है, मैं हर जगह पे ये बयान नहीं करता, चूंकि उलमा बैठे हैं, इल्मी तबका है, तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं अपने ज़ौक़ अब्बासी की ये झलक भी अपने असातिज़ा को दिखला दूँ। मेरे दोस्तों, आपकी तवज्जो से बात शुरू करने चला हूँ। मैंने जो आया पाक आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह बकरा का आगाज है, लेकिन मैं कहा करता हूँ कि ये सिर्फ सूरह बकरा का आगाज नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बे कायनात ने इन 4-5 जुमलों में बड़ी फसाहत और बलागत और बड़ी जामे माने ऐसी गुफ्तगू की कि अल्लाह ने समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। अलिफ लाम मीम और ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये पहला तारुफ कुरान और कुरान की सदाकत, कुरान की हक़ानियत, कुरान का मेयार हक, कुरान की हिफाजत और कुरान की अजमत, उसको बयान करने के बाद दूसरा जुमला फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब हमने मुत्तकीन के लिए उतारी। मैं सारी तमहीद को छोड़कर ये कम से कम मेरे 2 घंटे का उन्वान है, जिसको मैं आधे घंटे में समेटना चाहता हूँ, तो यकीनन मैं 2/3 हिस्सा इसका हज़फ करता चलूंगा। मोटी मोटी बातें आपकी गोश गुजार करता चलूंगा कि रब्बे कायनात ने पहले 2 जुमलों में तो अपनी इस किताब मुकद्दस का तारुफ कराया। पहले जुमले में किताब की हक़ानियत, सदाकत, मेयार हक और हिफाजत का इशारा, दूसरे जुमले में इस कुरान की आमद का मकसद कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मैंने मुत्तकीन के लिए उतारी। ये मुत्तकीन की हिदायत का समंदर है, रहरब मंजिल है, जो भी आएगा होगा खाएगा पाक हो जाएगा।
پھر ان دو جملوں کے بعد آگے رب کائنات نے متقین کی نشانیاں بتائی کہ میں نے یہ کتاب متقین کے لیے بھیجی۔ اللہ متقی کون ہے؟ تو پہلے تو آپ پورا قرآن اٹھائیں، اللہ کے پیغمبر کا فرمان اٹھائیں، ہم سے جو بھی نیکی رب کو مطلوب ہے وہ نیکی کا صرف وجود مطلوب نہیں بلکہ تقوی مطلوب ہے۔ فرمایا روزے رکھو، کیوں؟ ولا کی کیوں؟ اس لیے کہ لعلکم تتقون، قربانی کرو، کیوں؟ ولا کی ینالہ التقوی منکم، نماز پڑھو، کیوں؟ لعلکم تتقون۔ تو ہر جگہ روزے کے ساتھ تقوی لازم، حج کے ساتھ تقوی لازم، نماز کے ساتھ تقوی لازم، قربانی کے ساتھ تقوی لازم۔ تو رب کا مقصود ہم سے کیا ہے؟ تقوی۔ اور اللہ نے فرمایا یہ کتاب بھی میں نے متقین کے لیے اتاری۔ اب آؤ ملتان والو، ملساد آباد والو، جامعہ حنفیہ قادریہ والو، میرے شیخ کے شاگردوں اور جامعہ کے ہونہار طلباء کرام، میں علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرز پر رب کونین کی دربار میں دستے سوال دراز کرتا ہوں۔ اللہ آپ نے جو ہمیں حکم دیا کہ ھدی للمتقین، اس کتاب سے فائدہ، اس کتاب سے ہدایت، اس کتاب سے فلاح، اس کتاب سے کامیابی، اس کتاب سے جنت، اس کتاب سے مغفرت، اس کتاب سے راحت، اس کتاب سے ہدایت وہ پا سکتا ہے جس کے دل میں تقوی ہو۔ اللہ پھر متقین ہے کون؟ ہمیں متقین کی کوئی نشانیاں تو بتائیں، متقین کی کوئی آثار تو بتائیں، متقین کے لیے ہماری کوئی رہنمائی تو کریں۔ اللہ متقی کہتے کس کو ہے؟ تو کائنات کے رب نے کہا متقی کی 4 نشانیاں ہیں۔ اللہ کون سی؟ فرمایا پہلی نشانی، اگر دیکھنا چاہتے ہو، میرے جملوں پہ توجہ رکھنا، اگر پہلی نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے پہلے یار ابو بکر کا چہرہ دیکھ لو۔ اللہ کیا مطلب؟ فرمایا پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جو ایمان بالغیب لاتا ہے۔ آؤ صحابہ کی ہسٹری پڑھ کے دیکھو، تمام صحابہ نے کلمہ پڑھا مگر کوئی دلیل دیکھی، کوئی معجزہ دیکھا، کوئی براہین دیکھے۔ کسی نے دیکھا انگلی کے اشارے پہ چاند ٹکڑے ہو گیا، کلمہ پڑھا۔ کسی نے دیکھا حضور کے کندھے پہ مہر ختم نبوت نظر آئی، کلمہ پڑھا۔ کسی نے دیکھا حضور کی انگلی کے اشارے پر درختوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ لیا۔ کسی نے دیکھا حضور کی انگلی کے اشارے پر پتھروں نے کلمہ پڑھا، دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن اصحاب مصطفیٰ کی تاریخ میں اکیلا ابو بکر ہے کہ جس نے اعلان نبوت کے بعد ابھی پیغمبر کا چہرہ نہیں دیکھا، حضور سے ملاقات نہیں کی، سفر تجارت سے واپس آئے، ابھی مکے کے چوراہے پہ چلے، ابو جہل مل گیا اور کہنے لگا ابو بکر تم نے نئی بات سنی؟ ابو بکر نے پوچھا کون سی؟ ابو جہل کہنے لگا ایک آدمی مکے میں دعویٰ کر چکا ہے کہ میں اللہ کا نبی، صرف نبی نہیں امام الانبیاء، صرف نبی نہیں سید الانبیاء، صرف نبی نہیں خاتم الانبیاء۔ ابو بکر بتا یہ بات سچ ہو سکتی ہے؟ ابو بکر نے کہا ابو جہل مجھے پہیلیاں نہ بجھوا، پہلے نام بتا یہ کہتا کون ہے؟ جب ابو بکر نے پوچھا پہلے نام بتا یہ کہتا کون ہے، ابو جہل نے کہا ابو بکر وہ تیرا یار محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر وہ تیرا یار محمد کہتا ہے۔ تو اب ابو بکر کا جواب سن، تجھے الذین یؤمنون بالغیب کا پہلا مصداق سمجھ آئے؟ ابو بکر نے وہی کھڑے کھڑے کہا ابو جہل اگر محمد کہتا ہے تو پھر ابو بکر کی زبان سے سن، زمین و آسمان پھٹ سکتے ہیں، محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ اگر ابو جہل اگر محمد نے کہا ہے کہ وہ آخری نبی ہے تو پھر ابو بکر کہتا ہے وہ اس آخری نبی کا پہلا صحابی۔ اس کو قرآن نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، متقی کی پہلی نشانی دیکھنا ہو میرے نبی کے پہلے یار ابو بکر کا چہرہ دیکھ لو۔ حضور معراج کر کے واپس آئے، پھر وہی ابو جہل اینڈ کمپنی پہنچ گیا حضور ابو بکر کے پاس۔ ابو بکر ایک آدمی کہتے ہیں میں رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں لمحے میں ذرے میں سیکنڈ میں پوری کائنات دیکھ کے آیا ہوں، اٹ از پاسبل، یہ ممکن ہے؟ ابو بکر نے پھر کہا ابو جہل پہیلیاں نہ بجھوا، پہلے مجھے نام بتا یہ کہتا کون ہے؟ ابو جہل نے کہا تیرا یار محمد کہتا ہے۔ ابو بکر نے ابھی حضور کی زبان سے سفر معراج نہیں سنا، الذین یؤمنون بالغیب کا پہلا مصداق بنتے ہوئے کھڑے کھڑے کہہ دیا ابو جہل اگر محمد کہتا ہے ستارے بے نور ہو سکتے ہیں، محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ اسے قرآن نے کہا الذین یؤمنون بالغیب۔ بہت ساری باتیں شارٹ کٹ کرتا ہوں۔ اللہ دوسری نشانی فرمایا اگر دوسری
मैंने दूसरी निशानी बताई है, वह युकीमुन सलात, मुत्तकी वो है जिसकी इब्तिदा भी नमाज हो, जिसकी इंतहा भी नमाज हो, जो आए भी नमाज में, जो जाए भी नमाज में, जो रहे भी नमाज में। आओ मैं तुम्हें सहाबा की हिस्ट्री खोल कर दिखाऊं। 1,56,000 सहाबा में अकेला उमर बिन खत्ताब है जो जब इस्लाम में आया कलमा पढ़ते पहला काम नमाज था। उमर आए, बैठे, कलमा पढ़े, बिलाल खड़े हुए, नमाज का ऐलान किया। उमर ने पूछा ये क्या है? बिलाल ने कहा नमाज का ऐलान। उमर ने पूछा नमाज क्या है? बिलाल ने कहा अल्लाह की इबादत। उमर ने पूछा कहाँ करोगे? बिलाल ने कहा यही करेंगे। उमर ने कहा ये क्या? अगर इबादत रब की है तो दर भी रब का होना चाहिए। हुजूर की आंखों से आंसू छलक पड़े और कहा बे उमर तुझे क्या बताऊं, दिल तो मेरा भी करता है कि मैं रब की तौहीद के सजदे मैं रब की चौखट पे करूं, लेकिन मुशरिकीन मक्का मुझे काबे में घुसने नहीं देते। उमर ने तलवार निकाली और उमर ने कहा हुजूर उमर भी आए, काबे का दर न खुले, उमर के आने का क्या फायदा? हुजूर चले, मैं आज काबे में नमाज शुरू कराता हूँ। उमर सिर्फ पहला नमाजी नहीं, काबे में नमाज का इफ्तिताह करने वाला है। उमर आया, बैठा, कलमा पढ़ा, पहला काम। उमर की पूरी जिंदगी गुजरी, मैं उस पर नहीं जाता, मैं उमर पे बोलूं मेरी उम्र बीत जाए, मुझे उम्र नहीं चाहिए। उमर उमर है, हाँ, जिसके कारनामे मैं पूरी जिंदगी गिनवाऊं मेरी जिंदगी की शाम आ सकती है, मगर उमर के कारनामों की शाम नहीं आ सकती। पूरी जिंदगी गुजरी, मैं उमर के अदब पे, इंसाफ पे, ज़ोहद पे, तकवा पे, फहम पे, फरासत पे, बसीरत पे, बसारत पे, इल्म पे, दानिश पे, इरफा पे, मैं उसकी इबादत पे, रियाजत पे, मैं उनकी फसाहत पे, बलागत पे, अदल पे, इंसाफ पे, खिलाफत पे, किसी चीज पे नहीं बोलता। मैं सिर्फ एक नुक्ते पे खड़ा हूँ कि उमर आया, पहला काम नमाज। उमर जब दुनिया से जाने लगा आखिरी काम भी नमाज। इसको कुरान ने कहा वयुकीमून सलात, जो नमाज पे ऐसा पक्का ठक्का कायम दायम पुख्ता हो कि आते हुए भी आया तो नमाज में, जाते हुए गया शहादत के वक्त तो भी नमाज में। सिर्फ नमाज में नहीं, जमात में, सिर्फ जमात में नहीं, मस्जिद नबी में, सिर्फ मस्जिद नबी में नहीं, मुसल्ले पर, सिर्फ मुसल्ले पर नहीं, मुसल्ले रसूल पर। आया तो नमाज, गया तो नमाज। और इतनी अहमियत नमाज की, हाँ, जब हजरत उमर को खंजर लगा नीचे गिरने लगे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ आगे बढ़े और सहारा देने लगे। उमर ने कहा ओ इब्न औफ खबरदार, मेरी जान इतना कीमती नहीं है जितना रब की नमाज कीमती है। पहले नमाज पूरी कर, मुझे बाद में मेरा ख्याल करना और मुझे आसरा देना। इसके लिए कुरान ने कहा अगर मुत्तकी का दूसरी निशानी देखना चाहते हो, मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा देख लो, जो आता भी नमाज में है, जाता भी नमाज में। अल्लाह मुत्तकी की तीसरी निशानी फरमाया, फिर मुझसे क्यों पूछते हो, उसी तरतीब से चलते जाओ ना। अल्लाह ने तो खिलाफत राशिदा, मैं अपनी विजदानी कैफियत में कहा करता हूँ, अल्लाह ने खिलाफत राशिदा की तरतीब नसे कती में डाल दी। अल्लाह तीसरी निशानी फरमाया, मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देखो। अल्लाह वो कैसे? फरमाया बताया नहीं, मम्मी रज़क़ना हूँ युनफिकून। मुत्तकी की तीसरी निशानी है, मैं उसको देता जाता हूँ, वो मेरे रास्ते पे लुटाते। आओ साहबा की तारीफ पढ़ो, सारे साहबा सही भी है, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर खर्च करने वाले भी है, लेकिन तारीख इस्लाम में, तारीख साहबा में अकेला उस्मान को में नजर आएगा जिसको लिए पैगंबर को कहना पड़ा उस्मान बैठ, किसी और का तो नाम लिखने दे। वो उस्मान जिसके लिए मैं एक बात करके बात आगे चलाना चाहता हूँ। एक साहबी हुजूर अकरम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का नाम आए ना तो कुछ लोग यूं का के मुंह बंद कर लेते हैं, बोल के कहा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हां साहबी रसूल आए, हुजूर मैं मखलूक हूं, मखलूक को लाभ मोहताज हूं, गरीब हूं, हां मेरा बैतुल माल से ताउन करे। हुजूर ने खादिम को बुलाया, बैतुल माल से कुछ लाओ। उसने कहा कि बैतुल माल तो खाली है, सुबह झाड़ू दे के आया हूं। हुजूर ने फरमाया अच्छा कोई बात नहीं। उसे साहबी से कहा जो अरबी से देहात से आए थे, कहा जाओ उस्मान गनी के दरवाजे पर जाकर मेरा सलाम कहो, पैगाम दो, वो तेरा ताउन करेगा। साहबी कहते मैं पूछते पूछते उस्मान गनी के दरवाजे पर पहुंचा। मैंने अभी दरवाजे पे दस्तक देना चाहिए, मुझे अंदर से झगड़े की आवाज आई कि उस्मान अपनी बीवी को किसी बात पे डांट रहे हैं। जब मैंने कान लगाए तो पता चला उस्मान अपनी बीवी को कह रहे हैं कि रात तुमने चराग में रस्सी मोटी क्यों डाली थी, वो तेल ज्यादा पी गई, अगर रस्सी बारीक होती
होती, आधा तेल बच जाता, हम खाली इस्तेमाल कर लेते। तो वो साहबी कहते मेरे पाँव से जमीन निकल गई, मैं हैरान परेशान सरगर्दान पशेमान गोशपदंदान कि हुजूर ने ये किसके दरवाजे पर मुझे भेज दिया जो इतना सख्त तबीयत आदमी है कि बीवी को चराग की रस्सी पे डांट रहा है कि रस्सी बारीक होती तेल बच जाता तो वो मुझे क्या देगा। वो साहबी कहते हैं मेरा दिल चाहा कि मैं यहीं से वापस चला जाऊं, लेकिन चूंकि आर्डर पैगंबर का था मैंने मुनासिब नहीं समझा कि बगैर पैगाम दिए जाऊं। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, उस्मान बाहर आए, मैंने सलाम किया, हुजूर का सलाम देकर पैगंबर का पैगाम दिया। उस्मान अंदर वापस चले गए, 2 मिनट के बाद वापस आए और आकर मुझे एक थैली पकड़ाई। मैंने पूछा उस्मान इस थैली में क्या है, तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने कहा इसमें 2000 सोने के दीनार है। वो साहबी रसूल कहते हैं मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने फिर हाथ पकड़कर पूछा उस्मान मुझे ये फर्क इफरात तफरी बताता तो जा कि अपने घर के लिए तो इतना सख्त कि चराग की रस्सी पर अपनी बीवी को डांट रहा था, मेरे लिए इतना नरम और सखी कि बगैर पूछे एक पैगंबर के पैगाम पर 2000 सोने के दीनार दे दिए। ये इफरात और तफरीक क्यों? आओ मुल्तान वालों पैगंबर का जवाब सुनो, तुम्हारा ईमान ताजा हो और वह तुम्हें वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून के पहले मिस्दाक का अंदाजा हो। उस्मान गनी ने कहा ए बंदे खुदा जो मैं घर में खर्च करता हूँ इसका हिसाब मुझे क़यामत के दिन देना पड़ेगा, जो मैं तुझे दे रहा हूँ इसका हिसाब मुझे लेना पड़ेगा। जहाँ हिसाब देना हो वहाँ डरना पड़ता है, जहाँ हिसाब देना हो वहाँ इंसान बेदरेक खर्च करता है। मुत्तकी की तीसरी निशानी देखना चाहते हो, मेरे नबी के तीसरे यार फारूक आजम का चेहरा देखो। अब आओ एक मुश्किल मरहले में चलने चला हूँ, वो मरला कि जब मैं इसी उन्वान पर काफी पुरानी गालिबन 2007-8 की बात है, इंग्लैंड में एक कॉन्फ्रेंस में मैं इस मौजू पे बोल रहा था, तो मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा खालिद महमूद साहब PhD लंदन नव्वरल्लाहु मरकज़ा, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, आमीन, सारे आमीन। वो भी बैठे थे। जब मैंने चौथी निशानी बताई वहीं से उठे और आकर मेरी निशानी में बोसा देकर कहा अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अब उस तरफ आने चला हूँ, अल्लाह मुत्तकी की चौथी निशानी फरमाया वही तरतीब मेरे नबी के चौथे यार अली और मुर्तज़ा का चेहरा देखो, तुम्हें मुत्तकी की चौथी निशानी समझ आएगी। अल्लाह क्या मतलब? फरमाया पढ़ते नहीं हो, मैंने मुत्तकी की चौथी निशानी बताई है, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक। महबूब जो कुछ हमने इल्म वही आप पे उतारा और जो आपके पिछलों पे उतारा। क्या माना? इस जुमले का ताल्लुक इल्म से है, इल्म से नहीं उलूम से है, क्योंकि हुजूर पे आने वाले, हुजूर से पहले आने वाले तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान, मुख़्तलिफ़ 123 साहिब। अल्लाह ने इशारा किया कि चौथी निशानी देखना चाहते हो तो वो है चौथी निशानी कि जो इल्म में दस्तरस भी रखता हो, अमल में भी दस्तरस रखता हो, आलिम भी हो, कामिल भी हो, आमिल भी हो। आओ नबी के सहाबा की तारीफ उठा के देखो, जब नबी के सहाबा में उलूम वाले, इल्म वाले सहाबा का नाम देखोगे तो उसमें अली शेर खुदा का चेहरा सबसे ज्यादा तुम्हें चमकता नजर आएगा। इसलिए कि पैगंबर ने फरमाया अना दारुल हिकमत वालियुन बाबुहा अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, मैं इल्म का घर हूँ, अली उसका दरवाजा है, मैं हिकमत और बसीरत का घर हूँ, अली उसका दरवाजा है। और फिर एक वाकया आपने बहुत दफा एक हदीस सुनी होगी और मलंग लोग भी बड़ा बयान करते हैं कि हजरत उमर ने कहा था लौला अली हलाका उमर, हाँ अगर अली ना होता उमर हलाक हो जाता। आओ मैं तुम्हें अली के इल्म की सिर्फ एक झलक दे के बात को वाइंड अप करने चला हूँ, 5-7 मिनट मेरे पास बकाया बचे हैं। हाँ हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन है और हजरत उमर की अदालत लगी हुई है। एक लड़के को पकड़ के लाया गया और हजरत अली भी साथ बैठे हैं और वो उस लड़के का इल्जाम क्या है, इसने अपने मालिक को कत्ल कर दिया है, ये किसी का गुलाम था। तो हजरत उमर ने पूछा हाँ बेटा तूने कत्ल किया है? उसने कहा जी अमीरुल मोमिनीन मैंने कत्ल किया है। हजरत उमर ने पूछा क्यों? उसने कहा जी वो मेरे साथ कौम लूत वाला अमल करता था, मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए, इज्जत के दिफा के लिए मैंने उसे कत्ल कर दिया। हजरत उमर ने कहा कोई गवाह है? उस बच्चे ने कहा हुजूर ऐसे काम तो छुप के होते हैं, कोई गवाह तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं कसम उठा सकता हूँ कि वो मेरे साथ इस तरह बदफेली करता था तब मैंने कत्ल किया। हजरत उमर ने कहा नहीं मैं तो गवाहों का मुकल्लफ हूँ, गवाह होंगे तो तू छूट जाएगा, गवाह नहीं होंगे बदल में कत्ल कर दिया जाएगा। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरे पास गवाह नहीं है लेकिन मैं सच्चा हूँ। वो चीखने चिल्लाने गिड़गिड़ाने लगा। हजरत उमर ने कहा नहीं ले जाओ इसे कत्ल के बदले कत्ल कर दो। जब वो बच्चा ज्यादा
लड़का रोने लगा। अली शेर खुदा बैठे थे। अली और मुर्तजा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन अगर इजाजत हो तो ये फैसला मैं कर दूं, ये फैसला मैं कर दूं। तो हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा, अली आप तो इल्म के समंदर हो, सिर्फ आपके पास इल्म नहीं उलूम है। आप तो काज़ियों को साथ अक़सा हो अली, और आप तो पैगंबर के वो लाडले साहबी हो जिसके लिए पैगंबर ने अक़सा हो अली कहा। आप फैसला करो। आओ फिर मुल्तान वालों, अली का इल्म देखो जो सिर्फ आलिम नहीं कामिल भी है, आमिल भी है, इल्म का समंदर भी है, उलूम का गुलदस्ता भी है। इल्म सर्फ का माहिर अली, इल्म नहव का माहिर अली, इल्म फलसफा का माहिर अली, इल्म तफसीर का माहिर अली, इल्म हदीस का माहिर अली, इल्म लुगत का माहिर अली, इल्म फल्कियात का माहिर अली, इल्म रियाजी का माहिर अली। अली में उलूम के दरिया बहते हैं। तो अली मुर्तज़ा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन मुझे थोड़ा सा वक्त दो, ये फैसला मैं करता हूँ। अली उठे, बच्चे को साथ लिया, पुलिस को साथ लिया और कहा मुझे कब्रिस्तान ले चलो। कब्रिस्तान गए, कहा मरने वाले की कब्र पे ले चलो। मरने वाले की कब्र पे गए, कहा इसकी कब्र को खोलो। कब्र खोली, हजरत अली अंदर गए। अंदर जाकर 1-2 मिनट के बाद वापस बाहर आए और कहा कब्र बंद कर दो। कब्र है तो बजो, कहा कब्र बंद कर दो। कब्र बंद की, वापस आए हजरत उमर की अदालत में और आकर कहा, उमर ये बच्चा बेगुनाह है, इसे बाइज्जत बरी कर दो। हजरत उमर हैरान, अरे इसके बाद तो गवाह कोई नहीं था, आपके पास गवाही कैसे आ गई है, कैसे बेगुनाह हो गया? अली के इल्म की झलक और गहराई और डीप और उमक देख अली ने कहा, उमर अल्लाह ने मुझे नवाजा है, अगर इसका गवाह जमीन पे नहीं था तो अली इसकी गवाही जमीन के अंदर से लेके आया। मैं जमीन के अंदर से इसकी गवाही लेके आया हूँ। उमर ने पूछा वो कैसे? तो अली और मुर्तज़ा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन मैंने अपने कानों से पैगंबर का फरमान सुना था कि जो किसी बच्चे के साथ हम जिन्स परस्ती करता है, बदफेली करता है, कौम लूत का अमल करता है, जब वो मरेगा ना तो अल्लाह हुक्म देते हैं फरिश्तों को कि जाओ इसकी मैयत इसकी कब्र से निकाल कर कौम लूत के कब्रिस्तान में डाल दो, ताकि जो सख्त अजाब मैं वहां दे रहा हूँ वो मैं यहाँ नहीं देना चाहता था, दूसरे मुर्दों को तकलीफ ना हो। हाँ, इसको वहां डालो ताकि एक ही जगह पे अजाब अजीम आए, सख्त अजाब आए, दूसरे मुर्दों को तकलीफ ना हो। अली कहते हैं मैं उसकी कब्र में गया, उसकी कब्र में उसकी लाश मौजूद नहीं थी। मैं समझ गया कि ये बच्चा सच्चा है। अल्लाह ने उसकी लाश को उठाकर कौम लूत के कब्रिस्तान में डाल दिया। इसलिए फरमाया कि अगर मुत्तकी की चौथी निशानी देखना चाहते हो, मेरे अली और मुर्तज़ा का चेहरा देख लो। अल्लाह इन 4 निशानियों को अगर हम याद कर ले, इनके नक्शे पाँव पे चले, इनके नक्शे कदम पे चले, अल्लाह हमें मिलेगा क्या? फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। जो इन 4 के पीछे चलेगा मैं उसकी दुनिया भी बना दूंगा, मैं उसकी उक़बा भी बना दूंगा। कामयाबी चाहते हो, तकवा चाहते हो और अल्लाह के पैगंबर की शफाअत चाहते हो तो फिर असाब मुस्तफा के दरवाजे पे आना पड़ेगा और बिलखुसूस खिलाफत राशिदा के दामन को पकड़ना पड़ेगा। आज मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत को, जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में नामुस सहाबा का बिल पास करके साहबे कराम के चाहने वालों के दिल की तर्जुमानी की है कि आज के बाद अगर कोई नबी के सहाबा या नबी के अहले बैत या नबी की उम्महातुल मोमिनीन पर अगर कोई भी ज़बान ठोकी तो कम से कम 10 साल सजा होगी, ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद सजा होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम समझते हैं कि पाकिस्तान के कौमी असम्बली की इस कानून साजी के बाद अब कोई चूहा, अब कोई मलंग, अब कोई धुएंदार, अब कोई मुनाफिक और मुर्तद नबी के सहाबा पे तबर्रे की जुर्रत नहीं कर सकता। तो इंशाअल्लाह इस मुल्क में इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो वक्त करीब है कि जब खिलाफत राशिदा की तरस पर उलमा इन्कलाब लेकर आएंगे। मुल्तान वाले, हनफिया कादरिया वाले चाहते हो कि इस मुल्क में अबू बकर की सदाकत वाला निजाम, उमर की अदालत वाला निजाम, उस्मान के हया वाला निजाम, अली की शुजाअत वाला निजाम इस मुल्क में आए। आप चाहते हो कि ये निजाम आए? हाथ खड़ा करके बताओ, आप चाहते हो कि ये निजाम आए? फिर इस निजाम के लिए इन उलमा का साथ दोगे?
दुश्मन इस मुल्क में अपना सोशलिज्म चाहते हैं, न कम्युनिज्म चाहते हैं, न सेकुलरिज्म चाहते हैं, न लिबरलिज्म चाहते हैं, न जमहूरियत चाहते हैं। हम अगर चाहते हैं जो कुरान वाला निजाम, जो खिलाफत रास्ता वाला निजाम बैठ जाए, जहाँ खड़े बैठ जाए। अगर आप अपने वादे पे पक्के रहे तो मैं एक शेर पे बात खत्म करने चला हूँ। मैं आपके जज्बों की तर्जुमानी करते हुए ऐवान इक़्तिदार की राहदारियों से एक शेर गुजार कर यूरोपीय यूनियन और यूएसए और दुनिया के थिंक टैंक तक पहुंचाना चाहता हूँ कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो, जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहारा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। मैं अपने सहारा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहारा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी। हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है, तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखो।